we have different type of questions. Again, without wasting time, I don't want to tell you that starting में fill in the blanks आते हैं, match the column आता है, then there is all that you get in the notes, you get it in likely 21, one by one. Okay, so अगर मैं एक simple सब शब्दों में कहूं तो you have 1 mark question. Okay, you may have 2 mark question, you will have 3, and you will have 4 mark question. And as I said, I am coaching in all the 3 areas, that is ICSE, CBSE, State Board. बहुत simple rule याद रखना है आपको. When it is 1 sentence, you are expected to write the answer in. When it is 1 mark, you are expected to write the answer in 1 sentence. If it is 2 marks, it is 2 sentences. If it is 3 marks, it is 3 sentences. If it is 4 marks, it is 4 sentences. लेकिन अब अगर एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और आप एग्जैक्टली 4 सेंटेंस लिखते हैं तो जनरली दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द स्कूल्स. सो you can write a little more in that, 5 or 6. But generally in the board, when it is 4 mark question, it is 4 sentence. But it should be meaningful sentence and it should be to the point. जो पूछा है वो आपको लिखना है. That is what you have to write in the exam. That is what is expected from all of you. Okay. Another one is, if it is 1 mark question, बहुत simple है. 1 sentence में आंसर लिखना है. आपको लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है. To the point लिखना है. What has been asked, you should write that. That is what is expected. अगर fill in the blank आप लिखते हो, स्टार्टिंग में आपको fill in the blank आता है और आप fill in the blanks लिखते हो, तो अगर आपको पता चला वो क्वेश्चन वो गलत है, तो वहां कट करके वहीं पे आंसर लिखना गलत है, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलता है. You don't get marks for that. Generally, you should cut the entire sentence and write it again. But वापस लिखने के लिए भी आपको सेंटेंस के लिए जगह नहीं रहेगा. तो अच्छी बात यह है कि अगर आपको आंसर नहीं आता तो छोड़ दो. Write only the question, leave it. थोड़ी देर में याद आ जाता है, मदद कैसे भी मिल जाती है. तो then you should write. But once you write, it is over there. तो उसको करेक्शन करते हुए नहीं बैठ सकते. So that was basics. Okay. अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई. सबसे पहला है मैप मार्किंग. ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ मैप मार्किंग. एक तो है ये मैप मार्किंग का लेक्चर आपका यूट्यूब में रहेगा और इस अभी जो मैं सिखा रहा हूं वो आप वापस से भी देख सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. अदरवाइज यू विल बी सीइंग द मैप मार्किंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ एंड यू कैन ड्रॉ विथ इट. अगर आपके पास मैप रहेगा तो you can spend time in drawing it or see carefully how I am drawing, because I will not take more than 5-7 minutes for map marking. सारा का सारा हो जाएगा. Major part will be done. Okay. So first thing that we are seeing is map marking. Just give me some time. Just give me, I'm connecting again with that PPT. Now, all of you are able to see the map. On one side, you have the map, drawn map hai. On the other side, I will be drawing it right now, so you can see. अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, what am I supposed to use? Pencil, color pencil and all that. Simple answer is pencil. So आप अगर pencil इस्तेमाल करते हो बस हो गया. If you want to use color pencil, it is fine. You can use. ठीक है? तो when it comes to pencil or color pencil, let me give you a clarity. It is best you use pencil. मुश्किल से 4 क्वेश्चन तो आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो you don't have to use that. अगर आप कलर पेंसिल यूज करना चाहते हो तो माउंटेन्स है ब्राउन कलर, और माउंटेन्स है तो मोस्टली ब्राउन कलर. प्लेटो है तो इट इज येलो कलर. रिवर्स है, वाटर बॉडीज हैं तो इट इज ब्लू कलर. दीज आर द कलर्स दैट आर conventionally used, so you may use that. So right now when it comes to map marking, exam में जो map marking आता है, that is
स्टार्टिंग विथ पहले सारे माउंटेन्स, तो आपके माउंटेन्स आपको ड्रॉ करने हैं, तो इट विल बी, यहां कलर्स आई विल बी यूजिंग अ डिफरेंट कलर, आई एम नॉट गेटिंग इट ऑन दिस, सो आपको खाली ध्यान से देखना है। This is for Himalayas. Same way when it is Western Ghat, it will be Western Ghat. Eastern Ghat. फिर यहां आएगा विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज एंड अरावली रेंज। दीज आर द माउंटेन रेंजेस। अब यहां पर सारे माउंटेन्स ही दिखाए मैंने। द माउंटेन्स दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम आर दीज। यू कैन ऐड 2 more and that is Garo and Khasi. So these are the mountain ranges that you have to practice. And as I said, अगर आप color pencil use करते हो तो it can be dark brown color. Then apart from that, it is water bodies. And when it is water bodies, I told you it is blue color. तो यहां पर आता है, ये एरिया में आता है गल्फ ऑफ कच्छ, ये एरिया, यहां पर आता है गल्फ ऑफ खंबत, and this is the area for Gulf of Mannar. ये एरिया में शेड करना, सॉरी विद दिस। नाउ एग्जाम में नंबरिंग इज इंपॉर्टेंट। यहां सारे माउंटेन्स है, एग्जाम में सिर्फ एक माउंटेन आएगा, सो आई एम नॉट पुटिंग इट। नंबरिंग इज इंपॉर्टेंट एंड द सेम थिंग नीड टू बी शोन इन द इंडेक्स। अब नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैंने लिया राजस्थान में अरावली रेंज, आपने अरावली रेंज नहीं लिखा, इट इज ओके, बट इट इज बेटर यू राइट इट। व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज वहां चाहिए नंबर, और नीचे इंडेक्स में वो नंबर मैच होना चाहिए। यू आर राइटिंग नंबर 1 और उसके पास में आपको लिखना है अरावली। सपोज ग्रेटर हिमालय इज नंबर 2, तो नंबर 2 लिखा और पास में ग्रेटर हिमालयस लिखा, तो इट शुड बी लाइक दैट। लेकिन जहां आप ड्रॉ कर रहे हैं वहां नंबर डालना जरूरी है। नेम, इट इज बेटर यू राइट इट, दैट वुड मेक थिंग्स इजी। अब चलते हैं नेक्स्ट मैप के लिए। वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज रिवर्स। एग्जाम में हर साल रिवर्स आते हैं, सो यू हैव टू सी certain rivers that you have to learn to draw. They are asked every year. सारे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। Some of the important rivers which have been asked, अभी जितने रिवर मैं बताने जा रहा हूं, they are all given in the board exams. आ चुके हैं अब तक आ चुके हैं का मतलब है इससे पहले के सिलेबस में भी रिवर्स थे और वो हर साल आते थे। मैं वही रिवर्स दे रहा हूं। फर्स्ट वन इज रिवर महानदी, सेकेंड वन इज गोदावरी, third is Krishna, fourth one is Kaveri, fifth one is Narmada, sixth is Tapi. इतने रिवर्स। मैप मार्किंग एक ही काम करना है आपको देख के बनाना है, एंड देन यू हैव टू शो इट, देन यू हैव टू मार्क इट विदाउट सीइंग। तो ऑन वन हैंड one time you are seeing and drawing, second time you are drawing it without seeing, और कोई मेथड नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। You have to remember it in the form of a picture. एक फोटोग्राफ की तरह आपको याद रखना है, आपके सामने, आंख के सामने याद रखना है। And remember,
अभी ये जो रिवर्स दिखाए मैंने, एंड देन यहां एक और रिवर ऐड करता हूं, एंड दैट इज साबरमती. These are the questions that have come in the exam, board exam, time and again. Okay. बाकी रहा दूसरे रिवर से. अगर मैंने लिया गंगा, गंगा रिवर आने की चांसेस कम है. द रीजन इज दिस रिवर इज नॉट एंटायरली फ्लोइंग इन इंडिया. अगर मैं रिवर गंगा लेता हूं तो इट इज फ्लोइंग नो डाउट इंडिया में इतना है, बट एक्चुअली मेन गंगा इज गोइंग इनटू बांग्लादेश. इसी तरह अगर मैं ब्रह्मपुत्र लेता हूं तो मेजर पार्ट ऑफ द रिवर इज आउटसाइड, तिब्बत में आ जाता है. ओनली अ स्मॉल पार्ट इज इन इंडिया. इसलिए ब्रह्मपुत्र आने का चांसेस नहीं है. उसके नाम अलग अलग जगह अलग अलग है. सेम इज विद इंडस रिवर. अगर मैं इंडस भी लेता हूं तो वो भी ऐसा ही. इसीलिए आज तक कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है. जो आया है मैंने स्टार्टिंग के पेनिनसुलर रिवर्स आए हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए. तो ये खाली आप देख के जाओगे एग्जाम से पहले, अरे बोलेंगे यार अच्छा है, देखने में अच्छा दिखता है, तो इट विल नॉट वर्क. आपको प्रैक्टिस करना है. ओके. एग्जाम में जाने से पहले रिवर्स में से एक रिवर पक्का आता है. ऑफ कोर्स इंडिया या ब्राजील दोनों में एक आएगा, बट अगर इंडिया का मैप आया तो डेफिनेटली दे ऑलवेज गिव वन रिवर. सो दीज आर द मेन रिवर्स इन इट. अब हम आगे बढ़ते हैं. ब्राजील में आते हैं. Now talking about ब्राजील में certain things you have to learn. ब्राजील में जो सीखना है they are relatively less. तो what are they? First one is यहाँ एक island है, and that island you should know to mark, Marajo Island. उसके बाद मराजो आइलैंड के बाद यहां पर जो है ये अंदर की ओर शेड करना है आपको, जो वहां दिखाई देता है. तो दिस इज मराजो बे. सिमिलरली और एक आता है, ये जो है स्लॉट है, दिस इज साओ मार्कोस बे. तो दीज आर इंपॉर्टेंट. तो यहां इतने एरिया में मराजो आइलैंड्स, मराजो बे, साओ मार्कोस बे, ये तीन चीज आपको मार्क करना है. इसी तरह से यहां दिया है, इस जगह पर दिया है, इट इज पिको डी नेब्लिना. पिको डी नेब्लिना का मतलब होता है पीक ऑफ नेब्लिना. क्लियर? तो वो पूरा का पूरा एक जगह का नाम नहीं है, इट इज पीक ऑफ नेब्लिना. तो यू हैव टू मार्क अ स्मॉल ट्रायंगल एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड. इसी तरह से आता है एस्कार्पमेंट. एस्कार्पमेंट क्या है हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, सीखेंगे, बट अभी के लिए जो है यू शुड सी वेयर द मार्किंग इज एंड यू हैव टू मार्क इट. तो दैट इज देयर. Brazilian highland, major part of Brazil it covers. तो I generally say that cannot be asked. उसके पूछने की चांसेस कम है. आया तो इतना पूरा एरिया आ जाता है. मेजर पार्ट इज कमिंग एट दैट. वो आने के चांसेस नहीं है. तो एग्जाम में आया तो ये आ सकते हैं, ये सारे आ सकते हैं. गयाना हाईलैंड्स you can learn to draw Guyana highlands. You can have a look at this and the way it is drawn. तो if you have a look at it 2-3 times, you will learn it. You need to draw this 2-3 times, then it is easy. Similarly, we have pentanal wetlands. So we have these. Again, this should be learned. So from examination point of view, these are important for map marking. As we move ahead, rivers. अब इंडिया में बहुत सारे रिवर्स थे, ब्राजील में बहुत कम रिवर्स है जो आपको सीखने हैं. The first one is river Amazon. Okay, when it comes to river Amazon, क्योंकि that is the main river coming down and then it goes up. यहाँ ये slot में जाता है. That is one. Then it is Paraguay and then it is Parana. तो अगर मैं Paraguay लेता हूँ, okay, it comes up like this along the border. And then if I take Parana, तो Parana comes up like this. It comes along the border. Then it is joined by Uruguay. So Paraguay, Parana है, 2 rivers. And then the third river is Uruguay, जो कि इसको join करता है. And finally goes down. और यहां आता है Sao Francisco. So if we take up the river, it is Sao Francisco. It is going like this. Sao Francisco का मतलब होता है Saint So these are the important rivers for board exam.
for you to prepare, okay, for map marking. ये main rivers. बाकी chances बहुत कम है that they will ask Itapecura and river Paranaiba, ये भी है. बट मेन रिवर मेरे हिसाब से यही है. उसमें भी मेरे हिसाब से दो इंपॉर्टेंट रिवर आते हैं, अमेज़न एंड अदर वन इज साउथ फ्रांसिस्को, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर, स्टार्ट टू एंड अवेलेबल है. दैट्स द रीजन आई से दीज आर द वंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट. नाउ वी मूव हेड. वंस अगेन वी कम बैक टू इंडिया. अब इंडिया के और कुछ क्वेश्चंस हैं दैट इज बेस्ड ऑन क्लाइमेट, जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है. थोड़ी देर में हम देखेंगे, क्योंकि we will be seeing the chapter climate, and I say you will learn the chapter climate fully today. और एक है तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, मतलब आपका साउथ, और वेस्ट मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो वहां से एरोज आने चाहिए. नॉर्थ ईस्ट मतलब ये कोस्टल एरिया से ही आता है ज्यादातर, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया के इधर एरो बताएंगे, एरोज आपको यहीं से बताने. तो दीज आर द वंस. वी हैव अदर एरियाज, जैसलमेर, कारगिल, ये सब हैं, बाकी के प्लेसेस हैं. बट द इंपॉर्टेंट वन इज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स. तो वी हैव सीन ऑल दिस. ओके, अब आता है अगेन कमिंग बैक टू ब्राजील. तो व्हेन आई टेक ब्राजील, देयर आर एरियाज ऑफ थॉर्नी श्रब्स. ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो यू शुड नो टू ड्रॉ कि कहां तक आएगा, कैसे आएगा, कितना एरिया आपको शेड करना है. तो ये ध्यान से देखना है, आपको ड्रॉ करना है. देन यू हैव टू ड्रॉ विदाउट सीइंग. यू कैन गिव एनी टाइप ऑफ शेड, बट जैसे मैंने आपको बताया नंबरिंग इंपॉर्टेंट है. शोइंग द सेम थिंग इन द इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, नेक्स्ट टू दैट इज you have drought quadrilateral. अब ये टेक्स्ट बुक में कहीं दिया हुआ नहीं है drought quadrilateral, but what is expected is this drought quadrilateral. तो drought quadrilateral का मार्किंग ये है. This is the marking for drought quadrilateral. लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में drought quadrilateral भी आया और थॉर्नी श्रब भी आया. एक्चुअली वो दोनों ओवरलैप हुआ था इन द फर्स्ट ईयर. They had given this question. So examination point of view, this is important. So this is there. Then there are swampy lands. Swampy lands आप देखते हो नंबर 3 में है. This is important. Number 6 is important. Okay, temperate grasslands, that is pampas. These are the important questions in this page. सब कुछ सीखना नहीं है आपको, ये अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है. अब मेरे से पूछते हैं कि I have not given everything. Rest of the things are easy. You can practice. देखेंगे आ जाएगा. ये ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैंने यहां बताया. बाकी के अगर आप लेते हो, जैसे कि बाकी के जगह हैं, जैसे हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, और एक आया उसमें सर्टन एनिमल्स के जगह, ये सब टेक्स्ट बुक में है, मार्किंग्स हैं, देखना है और मार्क करना है, सीखना है. ओके, तो मैप मार्किंग में खाली आपको देखना है और ड्रॉ करना है. Now, one of the question that is asked is कि क्या एग्जाम में will it be like थोड़ा इधर उधर रहा तो चलेगा क्या? Many of them they ask me this question. Answer is चलेगा. Okay, answer is चलेगा, क्योंकि हम मैप मार्किंग जो कुछ भी करते हैं that is always a rough work. एग्जैक्ट कभी होता ही नहीं है. एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि यहां पर है वो जगह. तो मैप मार्किंग इज ऑलवेज अप्रॉक्सीमेट. लेकिन स्टूडेंट्स में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं. एक होते हैं जिनको 35 के नीचे आता है, और एक होते हैं 35 के ऊपर आता है, और उनमें भी कुछ होते हैं जिनको फुल मार्क्स मिलता है. अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए देन योर एक्यूरेसी लेवल शुड बी बेस्ट. मतलब एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए, 100% आपकी तरफ से प्रैक्टिस रहना चाहिए. ओनली देन इट इज डन. नहीं है, अगर आप 35 के नीचे के कैटेगरी के हैं, थोड़ा इधर उधर चलेगा. ओके, तो that was about map marking. Now whenever you want to have a look at it, most of it we have discussed, most of the maps we have discussed. बाकी जो हैं you can have a look at it. It is easy.
मुश्किल नहीं है, दे आर इजी, दैट्स व्हाई आई नॉट ड्रॉन इट हियर, दे आर ऑल डॉट्स। आपको देखना है किस जगह पे वो डॉट है और आपको प्रैक्टिस करना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ आई वाज टेलिंग यू दैट, अब वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। वी कम बैक वंस अगेन टू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, क्वेश्चन आंसर्स में मैंने आपको बताया कि आप जब आंसर्स लिखते हैं तो पॉइंट्स में लिखने चाहिए, पहली बात। ओके, और पॉइंट में लिखेंगे तो करेक्शन बिकम्स वेरी इजी, पता चलता है कितने पॉइंट्स में लिखा है एंड अकॉर्डिंगली द मार्क्स यू आर गिवन। जब आप आंसर लिखते हैं तो कैंसलेशंस नहीं होने चाहिए, यहां वहां कट करना वगैरह नहीं होना चाहिए। इट इज अ साइन ऑफ योर वीकनेस। मालूम है कि आप उस सब्जेक्ट में कच्चे हैं। बहुत से जन मेरे से पूछते हैं कि अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो चलेगा क्या? आंसर इज नहीं चलेगा। ओके, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम अपने वर्ड्स में कब लिखते हैं? जब हमें आंसर नहीं आता है, जब हमें अंदाजन कुछ पता है और अपने वर्ड्स में लिख देते हैं। तो अपने वर्ड में लिखने, आपका अपने वर्ड में लिखने का मतलब होता है कि ठीक से प्रिपेयर नहीं किया और अपने वर्ड में लिख दिया तो चलता है क्या? आंसर इज नहीं चलता है, क्योंकि करेक्शन करते टाइम हमें पता चलता है कि ये पढ़ाई हो गई है और उसने कुछ लिखा है, और दूसरा है उसने अपना जनरल नॉलेज डाला है। तो नहीं, इट इज नॉट करेक्ट। दूसरा होता है रट्टा मारना पड़ेगा क्या? फिर से आंसर इज नो, नहीं। सी, जब आप आंसर लिखते हो तो यू शुड राइट अ प्रिपेयर्ड आंसर। आप जब आंसर लिखते हो तो पता चल जाता है वेदर इट इज अ प्रिपेयर्ड आंसर और इट इज नॉट अ प्रिपेयर्ड आंसर। आपका प्रिपरेशन करने के बाद आपने लिखा हुआ आंसर है या यू रिटन समथिंग इन योर वर्ड्स। सो सी टू इट दैट यू राइट अ प्रिपेयर्ड आंसर। आपकी भाषा से ही पता चलता है कि ये प्रिपेयर्ड आंसर है। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर फुल मार्क्स, अगर आप फुल मार्क्स चाहते हो तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपका पूरा पेपर कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्लियर? और जैसे कि आपको चॉइस दिया है, गिव रीजन है, 4 दिया है, बोला 2 लिखो एंड ऑल दैट, सारे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। यू शुड ओनली राइट द राइट आंसर्स। ओके, जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है आपको, मतलब जो आपको अच्छे से आता है वही लिखना है। सब लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आप क्या बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं, जो आंसर में ज्यादा मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है करके उस तरह से लिख रहे हो तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं होते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगेन इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। ओके, अच्छा, आपको चारों आंसर आते हैं या लॉन्ग आंसर में सब आते हैं तो कौन सा लिखोगे? जिसमें अच्छे से पॉइंट्स लिख सकते हो, ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो, सेलेक्ट दैट आंसर एंड राइट दैट पर्टिकुलर आंसर, then it is done. Then you are going towards full marks. Getting full marks in geography, socials is easy. Okay, only you should write prepared answers, complete answer, और आंसर लिखते टाइम कैंसलेशंस नहीं होने चाहिए। यहां कट किया, फिर से लिखा थोड़ा, all that is a sign of imperfection, so that should be avoided from your side.